کیا ہزاروں غیر قانونی بھارتی امیگرینٹس کی امریکہ سے بے دخلی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکہ یاترا پر مجبور کر دیا؟ کیا ٹرمپ اور مودی کی بڑھتی ہوئی دوستی پاکستان اور چائنا کے لیے ایک نیا بڑھتا ہوا خطرہ ہے؟ کیا بھارت اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اور ڈیفنس پارٹنرشپ چین کے خطے اور دنیا میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس کی معیشت کے ابھرتے ہوئے سورج کو گرہن لگانے کے لیے ہے؟ ناظرین، آج سے چند روز قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کا 2 روزہ دورہ کیا۔ اس دورے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس بریفنگ کی۔ اس پریس بریفنگ میں بہت سے اہم اعلانات کیے گئے، جن میں سے 4 اعلانات نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں پر ان اعلانات کے نہ صرف بھارت اور امریکہ کے درمیان آپسی تعلقات پر اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ یہ اعلانات پاکستان اور چائنا کے لیے بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سے عالمی سیاست اور خطے کی سیاست پر بالخصوص مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس پارٹنرشپ کے مستقبل میں کیا نتائج آئیں گے، ان تمام تر صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ وہ 4 اہم اعلانات کون سے ہیں۔ سب سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ بھارت اب سے امریکہ سے تیل اور گیس خریدے گا۔ یہاں پر اس اعلان کا کانٹیکسٹ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی، چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دوسرا دور اقتدار ہے، اور اس سے پہلے بھی جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ لیٹس میک امریکہ گریٹ اگین۔ تو امریکہ کو گریٹ اگین بنانے کے لیے وہ امریکہ کی معاشی مضبوطی کے لیے کوشاں ہیں۔ یہاں پر دوسرے دور اقتدار میں جیسے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھایا تو انہوں نے تمام ٹریڈ ریلیشنز جو امریکہ کے بہت سے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ریوائز کرنا شروع کر دیا۔ جن ممالک کے ساتھ امریکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں تھا، ان ممالک پر ان کی جو برآمدات تھی امریکہ کی طرف، ان پر بہت حد تک اضافی ٹیرفز ڈونلڈ ٹرمپ نے عائد کرنا شروع کر دیے۔ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی کہ تجارتی خسارے سے یہاں پر یہ مراد ہے کہ جب 2 افراد کے درمیان تجارت ہو رہی ہو اور پرسن 1 پرسن 2 کو اگر زیادہ بیچ رہا ہے اور خرید کم رہا ہے تو وہ ٹریڈ سرپلس ہوگا، جبکہ اگر وہ خرید زیادہ رہا ہے اور بیچ کم رہا ہے تو اس کو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہیں گے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ کیا امریکہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہے؟ سال 2024 میں امریکہ اور بھارت کی تجارت کا کل حجم $127 ارب تھا، یعنی کہ $127 بلین۔ اس میں امریکہ کی بھارت کی طرف جو ایکسپورٹس تھیں وہ تقریباً $45 بلین تھی، جبکہ امریکہ نے جو انڈیا سے امپورٹ کیا وہ $87.4 بلین تھے۔ اب یہاں پر جو تجارتی خسارہ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو امریکہ کو دیکھنا پڑا، وہ تقریباً $45.7 بلین تھا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ بھارت پر بھی اضافی ٹیرفز عائد کریں گے، اور یہی وجہ بنی کہ جلد از جلد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پر نکل گئے تاکہ ان معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے۔ تو پہلے اعلان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ اب بھارت کو تیل اور گیس بیچے گا۔ اس سے
जो अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड रिलेशन में ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी वाक़ होगी या वो ट्रेड सरप्लस में बदल जाएगा। तहम यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि क्या भारत जब अमेरिका से तेल और गैस खरीदेगा तो उस पर उसकी मईशत पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। आलमी मंजरनामे में जब से रूस और यूक्रेन की आपस में जंग छिड़ी है, रूस पर बहुत बेतहाशा आलमी पाबंदियां आयद की गई हैं, जिसके नतीजे में उसकी ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स बहुत हद तक गिर चुकी हैं। ताहम भारत ने रूस से बहुत सा खाम तेल खरीदा और अमेरिका की इजाज़त के साथ। ताहम अब जब सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो वो रूस और यूक्रेन की जंग के कॉन्टेक्स्ट में मज़ीद रूस पर आलमी पाबंदियां आयद कर सकते हैं, और अगर मज़ीद आलमी पाबंदियां रूस पर आयद होती हैं तो भारत अपना तेल और गैस कहां से खरीदेगा। तो इस सूरत में उनके पास एक नया रास्ता आ गया है, लेकिन इस डील के ड्रॉबैक्स भी हैं। यहाँ पर भारत अगर अमेरिका से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है तो एक तो उसका डिस्टेंस दोनों ममालिक का आपस में बहुत ज़्यादा है, जो शिपमेंट कॉस्ट है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा अमेरिकन डॉलर बहुत मजबूत है भारतीय करेंसी के मुकाबले में, तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये असरात उस पहले ऐलानात के थे और उसका कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पर दूसरा ऐलान डिफेंस पार्टनरशिप और कॉपरेशन के हवाले से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि वो भारत को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स, जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, वो फराहम करेगा, और साथ साथ जो आर्म्स की सेल है यानी कि असले की फ़रोख्त को भी भारत को इंक्रीज कर देगा। अब इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है कि आखिर भारत को अमेरिका 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्यों फराहम करने लगा है। आज से कुछ महीने कबल चाइना ने 5th जनरेशन जो फाइटर जेट J-35 के नाम से लॉन्च किया। इससे ये हुआ कि चाइना की एयरफोर्स को एक बर्तरी मिल गई। अब चूंकि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, जो बढ़ती हुई कॉपरेशन है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि वो चाइना को किसी न किसी तरीके से कंटेन कर सके, चाइना को रोक सके, और इसके लिए भारत को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम उस फ़ज़ाई बर्तरी के बराबर करने के लिए, भारत की फ़ज़ाइया को मज़ीद ताकतवर करने के लिए ये तैयारे फराहम किए गए हैं। लेकिन इन तैयारों का भारत को मिलना पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की दिफाई निज़ाम उसमें एक खलीज पैदा हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगा भारत की निस्बत, क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत के पास होना यकीनन पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। और इस ख़तरे के बारे में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के एक बयान में भी इससे वाज़ेह सबूत मिलता है कि पाकिस्तान ने इस डील को एक ख़तरे के तौर पर समझा है, और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने ये ऐलान किया है कि इससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये डील पाकिस्तान और अमेरिका की जो पास्ट में डिफेंस और इकोनॉमिक डील्स होती थी उससे बहुत हद तक मुमासलत रखती है, और जो खदशात इस वक्त पाकिस्तान को हैं, आज से कुछ बरस पहले यही खदशात भारत को भी थे। अब देखते हैं कि जब 1979 में पाकिस्तान यूएस और वेस्ट का सोवियत यूनियन के खिलाफ एक फ्रंट लाइन एलाई था उस कोल्ड वॉर के अंदर, तो अमेरिका ने और वेस्ट ने पाकिस्तान को बेतहाशा इकोनॉमिक एड दी। उसके चलते चलते बहुत से हथियार भी पाकिस्तान के पास आए, और F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान को मिले, उसके हवाले से भारत को बहुत ज़्यादा खदशात थे। तो देखिए कि वक्त बदला, और यहाँ पर जो खदशात आज से कुछ बरस कबल भारत के थे, आज वही खदशात पाकिस्तान के हैं कि कहीं ये फाइटर जेट्स जो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका भारत को फराहम कर रहा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल न हो जाए।
उसके अलावा तीसरा ऐलान ये था, ट्रंप ने ये ऐलान किया कि मुंबई 2008 में मुंबई जो भारतीय हमले थे उसके इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को भारत के हवाले किया जाएगा। वो गिरफ्तार शख्स या जिस पर सहूलतकारी का इल्जाम है वो कौन है? उस शख्स का नाम है तहव्वुर राणा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वो एक पाकिस्तानी नयाद कैनेडियन सिटीजन है। उन्हें भारतीय मुंबई 2008 के हमलों की सहूलतकारी के इल्जाम में अमरीकी रियासत शिकागो में साल 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया। वहां की एक जिलाई अदालत में 3 हफ्ते के केस के बाद डेनमार्क और भारत के मुंबई हमलों की सहूलतकारी के इल्जाम में उनको 14 साल की कैद सुनाई गई। ताहम यहां पर उनको मुंबई हमलों में बराह रास्त मुलव्विस होने के इल्जाम से उसको बरी कर दिया गया। यहां पर यह बात निहायत अहमियत की हामिल है कि अगर अमेरिका भारत को इस तरह के प्रिजनर्स जो कैदी हैं वो उनके हवाले कर रहा है, तो ये इस चीज का इजहार है कि किस हद तक दोनों मुमालिक की कोऑपरेशन और पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। उसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करे और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज करे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया और इस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने यह कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया गया है और पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये इल्ज़ाम है। इससे पहले पाकिस्तान पैटफ की ग्रे लिस्ट में इसी इल्ज़ाम की वजह से जा चुका है कि वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से मुजाहिदीन भेजते हैं जो कि अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का मुस्तकबिल में क्या असर होगा? कश्मीर कॉज को बहुत हद तक नुकसान पहुंचेगा। कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं यकीनन उनको एक कश्मीर जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे जो उस कॉज को, उन लोगों को जो उस कॉज के साथ जुड़े हुए थे उनको सपोर्ट करते थे। तो अब से उस सपोर्ट यकीनन पाकिस्तान मज़ीद आलमी पाबंदियों से बचने के लिए और अमेरिका के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र ऐसे एलिमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर जो शायद उस तरीके से कार्रवाइयाँ माजी में नहीं होती थी उनके खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ करेगा और वहाँ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मुकम्मल अमन हो जाएगा और हुर्रियत, क़यादत और वो तमाम तर फ्रीडम फाइटर्स को भारत दबाने में कामयाब हो जाएगा और इस तरीके से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पर जो उसका गासिबाना कब्जा है वो उसको लीगलाइज कर लेगा। तो यहाँ पर इन ऐलानात को देखते हुए इनके कॉन्टेक्स्ट क्या थे और इनके फ्यूचर में खित्ते की सियासत पर, ममालिक की सियासत पर और उनके हालात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को वाज़े किया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोबारा। थैंक यू।